Hello and welcome back to the fourth lecture of prosthodontics. Under complete denture, we will today discuss about the maxillomandibular relationship, a comparatively important relationship from exam point of view. Let's start with vertical relationship. What is vertical relationship? Vertical dimension at rest. Vertical dimension at rest or VDR, the position of the jaw when the muscles are relaxed, is known as vertical dimension of rest. And what is OVD या video, vertical dimension of occlusion या occlusal vertical dimension, the vertical distance between the maxilla and the mandible when the teeth are in maximum intercuspation. ठीक है, occlusal vertical dimension is the distance between the maxilla and the mandible when the teeth are in maximum intercuspation. Okay, maximum intercuspation में जब teeth हो तब. Freeway space क्या है? Difference between vertical dimension at rest and vertical dimension at occlusion is known as freeway space. Normally it is 2 to 4 mm. Freeway space is normally 2 to 4 mm or to be precise 2 mm. ठीक है, 2 to 4 mm freeway space होता है हमारा. अगर vertical dimension reduce हो जाए तो क्या होगा? Facial disharmony होगी, TMJ disorders होंगे, एंगुलर चिल्लाइटिस होगा, चिन प्रोट्रूड हो जाएगा, रिंकल्स अराउंड द लिप्स एंड द वर्मिलियन बॉर्डर अपीयर्स थिन. ठीक है, कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिड्यूस्ड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन में क्या हो रहा है? ये हो रहा है. कंसिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन, अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? स्वॉलोइंग एंड च्यूइंग में डिफिकल्टी आएगी, एबनॉर्मली वियर ऑफ टीथ एंड क्लिकिंग साउंड होगा, पैथोलॉजिकल बोन रिजॉर्प्शन होगा, एलोंगेटेड फेस दिखेगा हमें, इनकॉम्पिटेंट लिप्स होगा एंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ फटीग होगा. ठीक है, क्या हो रहा है? इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन में एक्सेस क्लेंचिंग हो जा रही है, स्वेलिंग एंड चोइंग में डिफिकल्टी आने लगेगी. एक्सेस क्लेंचिंग हो रही है ना, टीथ की एक दूसरे से टीथ एक्सेसिव फोर्स के साथ अटैच है या घिस रहे हैं, तो एबनॉर्मल वियर हो रहा है टीथ का, क्लिकिंग साउंड आएगा टीएमजे से. पैथोलॉजिकल बोन रिजॉर्प्शन होगा, अनड्यू फोर्स लग रहा है टीथ पे और वहां से बोन पे ट्रांसफर हो रहा है या बोन पे अनड्यू फोर्स लग रहा है, तो एलोंगेटेड फेस दिखेगा, इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगे एंड फेशियल एक्सप्रेशन फटीग होगा ना, अनड्यू मसल्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है. तो अब हॉरिजेंटल रिलेशनशिप क्या है कंप्लीट डेंचर के लिए? मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, कंप्लीट इंटरकस्पेशन ऑफ अपोजिंग टीथ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्डाइलर पोजिशन, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल रिलेशनशिप. दैट इज complete intercuspation of opposing teeth independent of condylar position. And there is a thing, centric stops. Palatal cusp tip of upper posterior teeth is a centric stop. Buccal cusp tip of lower posterior teeth. ठीक है, palatal cusp tip upper teeth का और इसके just opposite buccal cusp tip lower posterior teeth का, ये दोनों as a centric stop काम करते हैं. Central pits plus marginal ridges of posterior teeth, इंसाइजल एजेस ऑफ लोअर एंटीरियर एंड पैरेटल सरफेस ऑफ अपर एंटीरियर. ठीक है, ये सब सेंट्रिक स्टॉप्स का काम करते हैं. तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि अपर में क्या है? अपर में पैलेटल कस्प टिप ऑफ अपर पोस्टीरियर टीथ एंड पैलेटल सरफेस ऑफ अपर एंटीरियर टीथ. ठीक है, अपर में दोनों पैलेटल काम कर रहा है हमारा. लोअर पोस्टीरियर में क्या हो रहा है? बक्कल कस्प टिप ऑफ लोअर पोस्टीरियर टीथ and incisal edges of lower anterior teeth है ना, and central pits and marginals of posterior teeth. ऐसे हो गया हमारा centric stop. याद हमें. What is an ideal bite or ideal occlusion? Ideal bite या ideal occlusion क्या है? Point contacts of the upper parietal cusp tip and the lower buccal cusp tips to the central foci and marginal ridges of the opposing posterior teeth. This is an important one. Ideal bite या ideal occlusion क्या होगा? Point of contact of the upper palatal cusp tips. upper के palatal cusp जो है वो lower के buccal cusp tip पे आके contact हो रहे हैं. Point contacts of the upper parietal cusp tips and the lower buccal cusp tip to the central foci and marginal ridges of the opposing posterior teeth. ठीक है, अपर का parietal cusp tip और लोअर का buccal cusp tip जो है वो आके टच होगा अपोजिंग टीथ में, सेंट्रल फोसे में एंड मार्जिनल रीजेस ऑफ अपोजिंग पोस्टीरियर टीथ में. ठीक है, इसको कहते हैं आइडियल बाइट या आइडियल अक्लूजन. एक बार आप खुद से पढ़ के एस्टैब्लिश कर लेना अपने दिमाग में कि ऊपर का पैरेटल कस्प और लोअर का बकल कस्प जो है वो दोनों ऐसे होगा सेंट्रल फोसे में और मार्जिनल रिज में अपोजिंग पोस्टीरियर टीथ के, है ना.
फोर्सेस शुड बी अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोस्टीरियर टिथ, है ना, जो आइडियल ऑक्लूजन होगा उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोस्टीरियर टिथ के अलोंग होगा। मैक्सिलरी बकल कस्प शुड बी बकली प्लेस्ड कंपेयर टू मैंडिबुलर बकल कस्प, है ना, मैक्सिलरी बकल कस्प जो होंगे वो, यहां मैं दिखाऊं, मैक्सिलरी बकल कस्प जो होंगे वो बकली प्लेस्ड होंगे एज कंपेयर टू मैंडिबुलर बकल कस्प, है ना, ये और आगे की तरफ प्लेस्ड है, ये वो हमारा आइडियल ऑक्लूजन। अब एक टर्म है सेंट्रिक ऑक्लूजन, ऑक्लूजन व्हेन द मैंडिबल इज इन सेंट्रिक रिलेशन, दिस मे और दे मे नॉट कोइंसाइड विथ मैक्सिमल इंटरकस्पेशन, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रिक ऑक्लूजन व्हेन द मैंडिबल इज इन सेंट्रिक रिलेशन। तो सेंट्रिक रिलेशन क्या है? When the condyle articulates with the thinnest avascular portion of the disc most anterior superior position against the articular eminence, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। जब कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करेगा विद द थिनेस्ट avascular पोर्शन ऑफ द डिस्क, है ना, तो कॉन्डाइल कहाँ करेगा? मोस्ट एंटीरो सुपीरियर पोजिशन में अगेंस्ट द आर्टिकुलर एमिनेंस जाके आर्टिकुलेट करेगा। कॉन्डाइल कहाँ करेगा? मोस्ट एंटीरो सुपीरियर पोजीशन अगेंस्ट द आर्टिकुलर एमिनेंस में जाके जो है कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करेगा, और ये क्या है? थिनेस्ट एवास्कुलर पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। ये आप याद रखना, कॉन्डाइल कहाँ जाके आर्टिकुलेट कर रहा है? रिट्रूडेड कॉन्टैक्ट पोजिशन, मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन ऑफ द कॉन्डाइल इज इन द joint cavity, more retruded that centric relation position. It is used to record the anterior posterior position of the mandible relative to maxilla. Retruded contact positions हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं anterior posterior position of the mandible related to maxilla, और ये क्या है? ये है मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन ऑफ द कॉन्डाइल इन द जॉइंट कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रूडेड कॉन्टैक्ट पोजिशन। कॉन्डाइल की सबसे रिट्रूडेड पोजिशन को रिकॉर्ड करना। How can you record mandibular guidance and RCP? ये जो है ये क्लिनिकल या लैब टेक्निक है, इसको हम लोग रहने देते हैं। रिकॉर्डिंग द मैंडिबुलर गाइडेंस, यहाँ हम लोग आते हैं TMJ मूवमेंट्स पे। TMJ मूवमेंट्स में क्या है? पहले स्लाइडिंग मूवमेंट। तो स्लाइडिंग मूवमेंट क्या है? ट्रांसलेशन बिटवीन द कॉन्डाइल्स एंड द क्रेनियम इज नोन एज स्लाइडिंग मूवमेंट। अपर कंपार्टमेंट में अगर हम देखें तो लोअर कंपार्टमेंट में क्या मिलता है? हमें हिंज मूवमेंट मिलता है। अपर कंपार्टमेंट में हमें मिल रहा है स्लाइडिंग मूवमेंट, दैट इज द ट्रांसलेशन बिटवीन द कॉन्डाइल्स एंड द क्रेनियम। लोअर कंपार्टमेंट ऑफ TMJ में हमें हिंज मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट इज रोटेशनल मूवमेंट। सैजिटल प्लेन से कॉन्डाइलर पाथ। कोरोनल प्लेन क्या है? या बेनेट्स मूवमेंट। कोरोनल प्लेन या बेनेट्स मूवमेंट क्या है? Coronal plane या Bennett's movement is the lateral shift of the mandible. Coronal plane या Bennett's movement is lateral shift of the mandible. Bennett shift क्या है? Bodily shift of the mandible to the working side, that is 1 to 2 mm. These two are important. Bennett's movement is lateral shift of the mandible. Bennett shift क्या है? Bodily shift of the mandible to the working side 1 to 2 mm. Bennett angle क्या है? Sagittal plane and the path of advancing condyle during lateral movement viewed in the horizontal plane is Bennett angle. These are important things. Bennett angle is the sagittal plane and the path of advancing condyle during lateral movement. ये हो गया हमारा Bennett angle viewed in horizontal plane. वर्टिकल मूवमेंट्स में आते हैं हिंज मूवमेंट्स, है ना। वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ TMJ में आया एक हिंज मूवमेंट। रोटेशन ऑफ मैंडिबल अलोंग द इमेजिनरी हिंज एक्सिस इज हिंज मूवमेंट। इट अकर्स, हिंज मूवमेंट कब होगा? ड्यूरिंग माउथ ओपनिंग। हिंज मूवमेंट TMJ में कब होगा? ड्यूरिंग माउथ ओपनिंग हिंज मूवमेंट होगा। ड्रॉज बिटवीन कॉन्डाइलर हेड्स। ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्या होगा? अकर्स ड्यूरिंग प्रोट्रूसिव एक्सकर्शन मूवमेंट। ट्रांसलेटरी मूवमेंट कब होगा TMJ का? जब प्रोट्रूसिव, मुंह खोल के आगे के साइड प्रोट्रूड किया जाएगा, प्रोट्रूसिव एक्सकर्शंस मूवमेंट में ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगा। और इस टाइम क्या होता है? व्हेन बोथ कॉन्डाइल्स मूव डाउन द आर्टिकुलर एमिनेंस विदाउट रोटेशन। दोनों कॉन्डाइल आर्टिकुलर एमिनेंस के डाउन, रोटेशन नहीं होगा इसमें। और ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट कब होगा? प्रोट्रूजन के टाइम। लेटरल एक्सकर्शन, कॉन्डाइल ऑन द सेम साइड रोटेट्स, कॉन्डाइल ऑन अपोजिंग साइड ट्रांसलेट्स। लेटरल एक्सकर्शन मूवमेंट्स में क्या होगा? सेम साइड का कॉन्डाइल रोटेट करेगा। कॉन्डाइल ऑन अपोजिट साइड, जिस साइड लेटरल, जिस साइड हो रहा है राइट या लेफ्ट साइड, उस साइड का कॉन्डाइल जो है वो रोटेट होगा और अपोजिंग साइड वाला ट्रांसलेट होगा। तभी तो आप जो है पेशेंट अपने जॉ को ऐसे या इधर कर पाएगा।
है ना। राइट साइड एग्जाम्पल, राइट साइड एक्सकर्शन, राइट कॉन्डाइल रोटेट्स एंड द लेफ्ट ट्रांसलेट्स। बॉर्डर मूवमेंट, एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल इज बॉर्डर मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट के लिए मैं एक बार आपको पेज कर दूं। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। शॉर्ट टेस्ट शॉर्ट करके भी ना ये इतना होगा, इससे कम तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये सारे मूवमेंट्स हैं कॉन्डाइल के और ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फंक्शन या यूनिलेटरल ऑक्लूशन, teeth on the working side are contacting but teeth on the non-working side are out of contact, that's group function. Canine function क्या है? Mutually protected occlusion. Canine function, canines prevent the posterior teeth from making contact during mandibular excursions. कैनाइन प्रोटेक्ट करता है पोस्टीरियर टीथ को कांटेक्ट करने से मैंडिबुलर एक्सकर्शन के कारण। पोस्टीरियर टीथ प्रोटेक्ट एंटीरियर टीथ इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, ओनली स्लाइट ऑक्लूजल कांटेक्ट ऑन द स्लाइट ऑफ। कैनाइन फंक्शन देख लिया आपने। कैनाइन फंक्शन इज बेस्ट टॉलरेटेड फॉर द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट सीडी में सबसे ज्यादा टॉलरेटेड कौन सा होगा? कैनाइन फंक्शन होगा पेशेंट के लिए बेस्ट टॉलरेटेड। आइडियल ऑक्लूशन फॉर अ डेंटिस्ट इज स्टेबल कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑल टीथ, equal anterior guidance all on anterior teeth, dislocation of posterior teeth on protrusion and dislocation of posterior tooth on lateral excursion, that is canine guidance. Processing plus wax up of trial dentures, इसमें 2-3 टर्म बस हम लोग देख लेंगे, सच एज फेस्टूनिंग या फेस्टून क्या है? Carving the denture base to stimulate the contours of natural tissues is known as festooning in complete denture. क्या होता है? Carving the denture base to साइमुलेट द कंटूर्स ऑफ नेचुरल टिश्यूज। ये स्टिमुलेट लिखा है यहाँ पे, साइमुलेट होना चाहिए, मतलब उसको रेप्लिकेट करेंगे हम कंटूर्स ऑफ नेचुरल टिश्यूज को। वैक्सिंग में कंटूरिंग द वैक्स बेस ऑफ ऑल ट्रायल डेंचर्स इनटू द डिजायर्ड फॉर्म। ये ट्रेल है, यहाँ पे ट्रायल होगा TRIAL, ट्रायल डेंचर्स इनटू डिजायर्ड फॉर्म्स। तो फेस्टूनिंग समझ में आ गया हमें। हम साइमुलेट करते हैं नेचुरल टिश्यूज के कंटूर को। Correct form of polished surface and the correct position of the teeth affects denture support, retention, aesthetics and supports of lip and cheek, ठीक है। Next is flasking. Flasking क्या है? Flasking is investing the cast and the waxed denture into a flask to form acrylic resin denture base. Flasking से हम क्या बना रहे हैं? Acrylic resin denture base बना रहे हैं। हम क्या करते हैं? कास्ट को और वैक्स डेंचर को एक फ्लास्क में रखते हैं और फिर क्यों? टू फॉर्म एक्रिलिक रेजिन डेंचर बेस। पार्ट्स ऑफ द फ्लास्क, गैप थिन, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डेंचर प्रोसेसिंग, एक बार ये देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ डेंचर प्रोसेसिंग, हो सकता है ये सीक्वेंस में हमें दे दे। तो स्टेप्स ऑफ डेंचर प्रोसेसिंग में डिसआर्टिकुलेशन, फ्लास्किंग, वैक्स बॉयल आउट, पैकिंग एक्रिलिक, हैंड प्रेस प्रोसेसिंग, डी फ्लास्किंग, सेलेक्टिव ग्राइंडिंग, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, ये है। तो फ्लास्किंग में क्या करना है हमें? ये लैब वर्क है, तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं बताती हूँ, वरना इसको स्किप करेंगे हम लोग। फ्लास्किंग पढ़ा था हमने, तो प्रोसेसिंग देखते हैं फ्लास्किंग का। फ्लास्क्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ क्लैंप एंड इंसर्टेड इनटू द क्यूरिंग यूनिट, ठीक है। फ्लास्क को हम लोग क्लैंप से हेल्ड करते हैं साथ में और क्यूरिंग यूनिट में रखते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? Process can be a long cycle, 7 hours at 74 degree Celsius, then 1 hour at 100 degree Celsius, और short cycle. Flasking long cycle और short cycle का होगा। long cycle जो होगा वो 7 hours का होगा 74 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद 1 hour का 100 डिग्री सेल्सियस पे। short cycle में 2 hour का 74 डिग्री सेल्सियस पे और 1 hour का 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो क्लैंप और फ्लास्क है ना, उसको कूल कराना है रूम टेम्परेचर पे, सो डैट वो डायमेंशनल चेंज जो है एक्रिलिक में वो ना हो। अलाउ द क्लैंप एंड फ्लास्क टू कूल डाउन स्लोली टू अवॉइड डायमेंशनल चेंज इन द एक्रिलिक। रिमूव क्लैंप। देन डीफ्लास्किंग क्या है? रिमूव द डेंचर विदाउट ब्रेकिंग द डेंचर और सेपरेटिंग इट फ्रॉम कास्ट इज नोन एज डीफ्लास्किंग। डेंचर को रिमूव करना और सेपरेट करना कास्ट से, हम लोग इसको बोलते हैं डीफ्लास्किंग। सेलेक्टिव ग्राइंडिंग शुड बी डन बिफोर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। सेलेक्टिव ग्राइंडिंग हमें फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग से करना है। अब है एक्रिलिक रेजिन। एक्रिलिक रेजिन में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोस्थो के हिसाब से हम लोग डेंटल आर्टिकुलेटर में देखते हैं। आर्टिकुलेटर क्या है? आर्टिकुलेटर इज अ डिवाइस दैट रिप्रेजेंट्स द TMJ एंड द जॉज
to which the upper and lower cast are attached to simulate jaw movement. It acts as the patient when the patient is absent. आर्टिकुलेटर क्या है? आर्टिकुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, टीएमजे को, एंड जॉज। आर्टिकुलेटर जो है जॉ और टीएमजे को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अपर एंड लोअर कास्ट आप अटैच करते हो और फिर जॉ मूवमेंट साइमुलेट कराते हो। ये एक एक्ट करता है पेशेंट की तरह। पेशेंट जब ना हो तो पेशेंट के जॉ मूवमेंट को ये साइमुलेट करता है। यूज इसका क्या है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग में आर्टिकुलेटर का काम आता है ड्यूरिंग टेक्निकल प्रोसीजर्स इन सीडी, आरपीडी, एफपीडी एंड सम कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेशंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ आर्टिकुलेटर्स? बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कॉन्डाइल, आर्कॉन होगा। आर्कॉन जो होगा वो आर्टिकुलेटर प्लस कॉन्डाइल से मिलके बना है एरकॉन। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्डाइल्स होते हैं एरकॉन, ठीक है। बी में है नन एरकॉन। और फिर फंक्शन के बेस्ड पे इतना सारा है। तो एरकॉन क्या है? एरकॉन इज आर्टिकुलेटर प्लस कॉन्डाइल। कॉन्डाइल्स आर ऑन लोअर मेम्ब्रेन एंड कॉन्डाइलर गाइड्स आर ऑन द अपर मेम्ब्रेन। एरकॉन में क्या होगा? कॉन्डाइल्स लोअर मेम्ब्रेन पे होते हैं और कॉन्डाइलर गाइड्स जो होते हैं वो अपर मेम्ब्रेन पे होते हैं। नॉन एरकॉन में कॉन्डाइल्स ऑन द अपर मेंबर एंड कॉन्डाइलर गाइड्स ऑन द लोअर मेंबर। जस्ट अपोजिट हो जाता है। किसी एक को याद रखो, आप दूसरे में सोच लेना, जस्ट अपोजिट है। बेस्ड ऑन फंक्शन हिंज होगा। मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर्स होते हैं सेमी एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल। फुली एडजस्टेबल को हम लोग बोलते हैं ग्नाथोलॉजिक इंस्ट्रूमेंट। ग्नाथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अक्लूशन एंड अक्लूशल रिहैब यूजिंग फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स एंड पैंटोग्राम्स इज नोन एज ग्नाथोलॉजी। अक्लूजन की स्टडी और अक्लूशल रिहैब की स्टडी विद द यूज ऑफ फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स एंड पैंटोग्राम्स, है ना। इसको बोलते हैं ग्नाथोलॉजी। पैंटोग्राम क्या है? इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टाइली एंड ट्रेसिंग टैबलेट्स एंड दैट प्रोड्यूसेस अ 3D डायनामिक रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसिंग इज पैंटोग्राम्स। नाउ टाइप ऑफ आर्टिकुलेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सिंपल हिंज आर्टिकुलेटर है ना, इसमें सिर्फ हिंज मूवमेंट होगा। स्टडी मॉडल्स के लिए, रिलाइनिंग और रीबेसिस के लिए हम लोग सिंपल हिंज आर्टिकुलेटर यूज करते हैं। MVA मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर कब यूज करते हैं हम लोग? आर्टिकुलर मेजरमेंट्स बेस्ड ऑन एवरेजेस। लिमिटेड लेटरल एंड प्रोट्रूसिव मूवमेंट होगा। मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर में क्या होगा? लिमिटेड लेटरल एंड प्रोट्रूसिव मूवमेंट होगा। ओनली एक्सेप्ट सेंट्रिक रिकॉर्ड्स यूज्ड फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ CD और RPD। मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर्स जो है CD, RPD के सिंपल केसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। शॉर्ट स्पैन 3 यूनिट ब्रिज। सेमी एडजस्टेबल, इट एक्सेप्ट्स द सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट नीड्स फेस बो टू रिलैक्स, maxillary cast to hinge axis, needs static records in protrusive and lateral excursions to program horizontal condylar guidance and Bennett's angle। इसके स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना आप लोग। फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स नीड्स फेस बो, पैंथो ट्रेसिंग, ओके, नॉट नेसेसरी टू लर्न। कमिंग टू maxillary face bow, it is used to record the relationship of the maxilla to the skull base। maxillary face bow से आप लोग क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड करोगे relationship of maxilla to the skull base। universal face bow, it relates the maxilla to the condylar axis and the Frankfurt horizontal plane, can either be with an orbital pointer or nasal saddle। universal face bow से क्या होगा? relates the maxilla to the condylar axis and the Frankfurt plane। फ्रैंकफर्ट प्लेन हमें क्या है पता है, आई और ईयर दोनों आता है इसमें। बेरन पॉइंट क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोस्ट रेफरेंस, पोस्टीरियर रेफरेंस। बेरन पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोस्टीरियर रेफरेंस लोकेटेड 13 mm anterior on a line from the center of the tragus to the outer canthus of the eye। It is known as Beron point। Kinematic face bow applied on the mandible to record the terminal hinge axis। Kinematic face bow से क्या हो रहा है? It is applied on the mandible to record the terminal hinge axis। How do you adjust the horizontal condylar angle या lateral condylar angle? Bennett's angle on semi adjustable articulator, not important। Coming to incisal guidance, ठीक है। Incisal guidance is angle formed in the horizontal plane by drawing a line in the sagittal plane between the incisal edges of the upper and lower teeth in RCP।
तो क्या है आरसीपी? आरसीपी इज रिट्रूडेड कॉन्टैक्ट पोजिशन। इंसाइजल गाइडेंस हो गया हमारा। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओवरलैप ऑफ एंटीरियर टिथ अफेक्ट्स द कस्प हाइट ऑफ पोस्टीरियर टिथ। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल ओवरलैप जो डेंचर में एंटीरियर टिथ की होगी उसकी वजह से पोस्टीरियर टिथ के कस्प हाइट में अफेक्ट होगा। ग्रेटर द वर्टिकल ओवरलैप द ग्रेटर द posterior cusp height, the greater the horizontal overlap the shorter the posterior cusp height। ठीक है, वर्टिकल ओवरलैप एंटीरियर्स का जितना ज्यादा होगा पोस्टीरियर कस्प हाइट उतनी ज्यादा होगी, और हॉरिजेंटल ओवरलैप एंटीरियर में जितना ज्यादा होगा शॉर्टर होगा पोस्टीरियर कस्प हाइट उतना ज्यादा ही। क्रिस्टेंसेंस फेनोमेना। क्रिस्टेंसेंस फेनोमेना क्या है? If the artificial teeth are set along the horizontal, there will be a space bilaterally during protrusion and on the non-working side during lateral movement. It is known as Christensen's phenomena. जब आर्टिफिशियल टिथ को सेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देयर विल बी अ स्पेस बाइलेटरली ड्यूरिंग प्रोट्रूशन। जैसे ही पेशेंट प्रोट्रूड करेगा तो स्पेस क्रिएट होगा बाइलेटरली एंड ऑन द नॉन वर्किंग साइड ड्यूरिंग लेटरल मूवमेंट, और लेटरल मूवमेंट के टाइम नॉन वर्किंग साइड पे। इसको बोलते हैं क्रिस्टेंसेंस फेनोमेना। आर्टिफिशियल टूथ शुड बी सेट इन अ कर्व सो दे मेंटेन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग ऑल द टाइम ऑल मूवमेंट। इसीलिए एक कर्व में सेट करना चाहिए आर्टिफिशियल टिथ को सो दैट हर टाइम कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे। कर्व ऑफ स्पीक, कर्व ऑफ विल्सन, ये सब हम लोग ऑर्थो में पढ़ चुके हैं। ट्रायल डेंचर्स पे इसमें मैं बस फोनेटिक्स देखूंगी। चेक फोनेटिक्स में क्या देखना है? एफ एंड वी साउंड्स। एफ एंड वी साउंड्स में अपर इंसाइजल एज शुड टच लोअर लिप वेट लाइन। एफ और वी साउंड निकालने में पेशेंट का अपर इंसाइजल एज है ना, वो टच करना चाहिए लोअर लिप के वेट लाइन को। एस और जेड साउंड में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिथ शुड नॉट टच। जब पेशेंट ऐसे वर्ड्स बोले जिसमें एस और जेड से साउंड हो, तब पेशेंट का एंटीरियर और पोस्टीरियर टिथ जो है वो टच नहीं होना चाहिए। ये वो फोनेटिक्स ऐसे हमने चेक करना है। What are the things that you do in a trial denture appointment? What do you check? हम लोग ट्रायल डेंचर में क्या चेक करते हैं? वेरीफाई करते हैं हम लोग वर्टिकल जॉ रिलेशनशिप को। ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन देखेंगे, जिसमें वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट देखेंगे एंड फ्रीवे स्पेस देखेंगे। फ्रीवे स्पेस कितना होगा? 2 mm या फिर 2 to 4 mm। हम लोग क्या ट्रायल डेंचर में चेक करते हैं? वेरीफाई करते हैं वर्टिकल जॉ रिलेशनशिप पेशेंट का। देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक वे, डिपेंड्स ऑन प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड्स, फोनेटिक्स, एनेस्थेटिक्स, फेशियल डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए हम लोग वेरीफाइंग ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ हॉरिजेंटल जॉ रिलेशनशिप क्या क्या कैसे कैसे हम लोग करते हैं? स्टैटिक में करते हैं, सेंट्रिक रिलेशन प्लस डायनामिक रिलेशन करते हैं, लेटरल एंड प्रोट्रूसिव करते हैं। इसमें है इंट्रा ओरल मेथड, एक्स्ट्रा ओरल मेथड। इंट्रा ओरल में गाइड द पेशेंट इनटू सेंट्रिक रिलेशन, प्लेस द थंब on the anterior inferior portion of the chin and the index finger bilaterally on both sides of the buccal flanges of lower denture. Teeth should occlude properly as in an articulator if they slide over each other or do not touch. Mounting is wrong. ठीक है। एक्स्ट्रा ओरल मेथड में हमें क्या करना है? soften a piece of alu wax and place it on the mandibular posterior teeth. Then guide the patient into centric relation. Remove the denture from the mouth and mount it on the articulator. Opposing tooth should fit into the indentations. If they don't fit, centric relation was wrong. ये आप खुद से पढ़ के साथ में समझते जाना कि क्वेश्चन उस हिसाब का अगर हो तो आपके पास आंसर हो। Check working plus non-working plus protrusive contacts. At least 3 widely spaced points areas of occlusion must exist. Vertical relation में ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, पोस्टीरियर पैरेटल सील होना चाहिए, इस्टेब्लिश करना है। फेशियल एंड फंक्शनल हार्मनी विद एंटीरियर टिथ होना चाहिए, जिसमें कि लिप सपोर्ट, स्ट्रेच लिप, एलिमिनेट नॉर्मल लिप्स कंट्रोल, ये। और फिर फोनेटिक्स चेक करना है। अगर हमें पता चले कि सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्डिंग गलत हुई थी, फिर क्या करना है? उसके लिए क्या करना होगा? फिर हमें चेक एंटीरियर टिथ ओवरलैप एंड लिप सपोर्ट, रिमूव पोस्टीरियर टिथ, प्लेस रजिस्ट्रेशन मटेरियल एंड आस्क द पेशेंट टू बाइट अंटिल यू रीच द सेम वर्टिकल ओवरलैप बिफोर रिमूविंग द पोस्ट। ठीक है, ये क्लिनिकल वर्क था हमारा। Setting maxillary anterior teeth directly over the ridge is not aesthetic. Setting them far back, insufficient lip support. Maxillary anterior teeth should be set in a way their parietal surface is 8 to 10 mm away from incisive papilla. ये correct positioning है maxillary anterior teeth की। The amount of upper teeth seen during function and speech and facial expression depends on length plus movement of upper lip.
एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिक क्या है कंप्लीट डेंचर में और ये जरूरी क्यों है? तो एसिमेट्रिकल एसिमेट्री में क्या होता है, लेबियल एंड बकल लाइंस ऑफ अपर एंड लोअर टीथ, उनकी एंगल्स जो है ना शुड हैव इक्वल अपोजिंग एंगल्स। जो लेबियल एंड बकल लाइंस हैं अपर और लोअर टीथ के, उनको ना इक्वल अपोजिंग एंगल्स होना चाहिए। सच एज अगर अपर लेटरल को आपने 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे टू द परपेंडिकुलर सेट किया है तो लोअर लेटरल को भी 5 डिग्री टू द परपेंडिकुलर पे ही आपने सेट करना होगा। इससे क्या होगा, नेचुरल अपीयरेंस आएगी कंप्लीट डेंचर की। What is the neutral zone? Why is it important in setting artificial teeth in complete danger? Point ये अच्छा है। A position neutral zone is a position in the mouth where the inward pressure of the lips and the cheeks is balanced by the outward pressure of the tongue. Neutral zone क्या है, जहाँ inward pressure lip और cheek की जो है वो balance होगी outward pressure of the tongue से। You should set the teeth in the neutral zone, otherwise you will end you with lack of tongue space and cramped tongue। ठीक है, ऐसा स्पेस डेंचर में जहाँ पे आउटर जो फोर्स है और इनर जो टंग का फोर्स है बैलेंस हो रहा है उसको न्यूट्रल जोन बोलते हैं, वहीं पे टिथ सेटिंग होती है। तो क्रैम्प्ड टंग क्या है, हाउ डू यू चेक क्लीनली फॉर लैक ऑफ टंग स्पेस? क्रैम्प्ड टंग मतलब क्रैम्पिंग तभी ना जब कुछ चीजें ऐसे बिल्कुल घुसी घुसी से हो, जगह कम हो। लैक ऑफ टंग स्पेस हैपेंस व्हेन द टीथ आर नॉट सेट इन न्यूट्रल जोन। क्रैम्प्ड टंग या लैक ऑफ टंग स्पेस कब होगा, जब टीथ आप न्यूट्रल जोन में सेट नहीं करोगे। आइदर टू लिंगुअली सेट कर दिया है या लिंगुअली टिल्ट कर दिया है, और तो और बको लिंगुअली टिथ को बहुत ब्रॉड रखा है, तो इस सिचुएशन में क्रैम्प्ड टंग होगा या फिर लैक ऑफ टंग स्पेस होगा। अगर लैक ऑफ टंग स्पेस होगा ना तो उसको चेक करने का तरीका है कि पेशेंट को बोलना होता है टंग रेस करो पैलेट के साइड। अगर टंग स्पेस कम है ना तो डेंचर भी पैलेट के टंग के साथ साथ राइज करेगा। इंसर्शन ऑफ द फाइनल डेंचर। फाइनल डेंचर के इंसर्शन से पहले पेशेंट को बोलते हैं कि वो 12 से 24 घंटे पहले, जब हम डेंचर देंगे उससे 12 से 24 घंटे पहले अपना पुराना डेंचर पेशेंट को नहीं पहनना है। बिफोर इंसर्टिंग द न्यू डेंचर पेशेंट शुड बी टोल्ड नॉट टू वियर देयर प्रीवियस डेंचर्स फॉर 12 to 24 आवर्स। इंसर्ट करने से पहले स्मूथ होना चाहिए आपके डेंचर का सरफेस, पॉलिश होना चाहिए, बॉर्डर राउंड एंड स्मूथ होंगे। इम्परफेक्शंस टिश्यू सरफेस पे नहीं होना चाहिए वरना इम्पेजमेंट होगा, अल्सरेशन होगा, नेक्रोसिस, बहुत कुछ हो सकता है। फ्लैंजेस आर नॉट थिक एंड डोंट हैव शार्प एंगल्स, नो शार्प एजेस इन फ्रेनल अटैचमेंट्स। ठीक है, और इरेगुलरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, प्रेशर इंडिकेटिंग पेस्ट जो है उससे लोकेट कर सकते हैं हम लोग इरेगुलरिटीज टिश्यू सरफेस पे, एडजस्टमेंट और टू द टिश्यू बिफोर अक्लूजल द एरियाज। ठीक है, हमारा जो डेंचर है उस पर प्रेशर इंडिकेटिंग पेस्ट लगाकर हम लोग इरेगुलरिटीज को चेक कर सकते हैं। बेस्ट वे टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द डेंचर्स इरेगुलरिटीज और डेंचर इम्परफेक्शंस, डेंचर कंप्लीट डेंचर के इम्परफेक्शंस को या जो भी उसमें गलत हुई है चीजें उसको डायग्नोस करने का और उसको फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करने का बेस्ट वे क्या है, एक्स्ट्रा ओरल वे। एक्स्ट्रा ओरल वे है ना वो बेस्ट वे है चेक करने का डेंचर के एरर्स को। एक्स्ट्रा ओरली बेस्ट वे फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ डेंचर। हमें डेंचर इंसर्शन के बाद पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, बी पेशेंट एडजस्टमेंट टू द न्यू डेंचर नीड 6 to 8 वीक्स। पेशेंट को कितना टाइम लगेगा नए डेंचर से एडजस्ट होने में, 6 से 8 हफ्ता, 1.5 से 2 महीना। ईट स्लोअर, कट द फूड टू स्मॉल पीसेस एंड च्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है, प्रैक्टिस रीडिंग आउट लाउड टू इम्प्रूव स्पीच, लीव द डेंचर आउट एट नाइट इन वाटर, क्लीन द डेंचर विथ सॉफ्ट ब्रश एंड लिक्विड सोप, क्लीन इट ओवर अ सिंक फिल्ड विथ वाटर सो इफ इट फॉल्स इट वुंट ब्रेक। ये हमें देना है इंसर्शन के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस। फॉलो अप आफ्टर द इंसर्शन शुड बी एंड यू शुड डू द फॉलोइंग। फॉलो अप कब होना चाहिए, 24 घंटे बाद, एंड देन 72 आवर्स बाद। फॉलो अप आप डेंचर्स कंप्लीट डेंचर्स देने के बाद फॉलो अप कब लोगे पेशेंट से, एक 24 घंटे बाद और फिर दूसरा फॉलो अप लोगे पेशेंट का 72 आवर्स बाद, मतलब पहले दिन और तीसरे दिन लोगे फॉलो अप।
ठीक है, अब हमने डेंचर दिया पेशेंट को और फिर कुछ कंप्लेन आ जाए अगर, और उसका रीजन, तो क्या है कुछ कंप्लेन ये, और फिर इसके सीक्वल ऑफ डेंचर, कंप्लीट डेंचर या फिर कंप्लीट डेंचर के डिसएडवांटेजेस या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।